As the Development Management Institute here in Patna prepares for our second convocation ceremony to confer diploma on our 24 graduates who have fulfilled the requirements for the award of what we consider a very valuable certificate earned by them at the end of 2 years of hard work and industry. I am very pleased to share as the acting director of this institute that the DMI is not a Me Too institution. DMI यानी डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट या विकास प्रबंधन संस्थान, इसकी स्थापना इसलिए हुई कि मैनेजमेंट के बारे में पढ़ाने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन विकास प्रबंधन के लिए यानी डेवलपमेंट मैनेजमेंट के लिए कोई संस्थान नहीं था। और भारत में, हमारे देश में डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स बहुत संख्या में उनकी ज़रूरत है, इसीलिए इसकी स्थापना की गई। और 3 क्षेत्रों में ये हम लोग फोकस करते हैं पढ़ाई में। एक है लाइवलीहुड्स एंड वेलबींग, जीवन यापन यानी, दूसरा है कलेक्टिव्स एंड कॉमन्स, सामूहिक जो संगठन हैं, और तीसरा है नेतृत्व और शासन, लीडरशिप एंड गवर्नेंस। तो इन क्षेत्रों में पढ़ाई होती है, और पढ़ाई सिर्फ क्लासरूम में नहीं बल्कि फील्ड में जा कर के, जिसको बोलते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग। Our job is to instigate the fire which will kind of propel the continuous learning in the participants. So that's how we are associated with the participants. And now after 2 years, when they are graduates and they are passing out and they'll be becoming a development professional with their joining their respective organizations, working with them, growing and making their career path with those organizations, we are feeling very proud. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। DMI एक मिशन उन्मुख संस्थान है जहां आदर्श एवं मूल्य सर्वोपरि है। DMI के लिए हर्ष की बात है कि सोसाइटी के प्रेसिडेंट एवं राज्य के मुख्यमंत्री महोदय इस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को डिप्लोमा प्रदान करते हुए उनको अपना आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। We are indeed fortunate to have a statesman with vision, deep understanding of society and politics, an indefatigable workhorse, a practitioner of Gandhiji's concept of trusteeship, and one who restored the pride of the citizens of Bihar as president of the DMI Society and chief guest on this auspicious occasion. उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस समारोह के सम्मानित अतिथि डॉक्टर माधव चव्हाण ने देश की प्रगति में शिक्षा की कमी को मुख्य बाधा मानते हुए कॉलेज में आरामदेह पढ़ाने की नौकरी को त्याग कर साक्षरता एवं मुंबई के स्लम्स में बच्चों को सिखाने की चुनौती ठान ली। इन अनुभवों के आधार पर उन्होंने कुछ सहयोगियों के साथ प्रथम नामक संस्था स्थापित किया।
बच्चे स्कूल जा रहे हैं पर सीख नहीं रहे हैं, इसलिए प्रथम का मिशन है एवरी चाइल्ड इन स्कूल एंड लर्निंग वेल। डॉक्टर चौहान वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन के लॉरिएट हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा जगत में इसे नोबेल प्राइज फॉर एजुकेशन का दर्जा दिया जाता है। डॉक्टर चौहान का स्वागत करता हूं। संस्थाएं कुछ प्रबुद्ध व्यक्तियों के विजन के कारण सृजित होते हैं। श्री अरविंद चौधरी तत्कालीन CEO जीविका, प्रोफेसर तुषार शाह जो हमारे बीच मौजूद हैं आज, प्रोफेसर KV राजू DMI के प्रथम निदेशक और कुछ अन्य सदस्यों की सक्रिय भागीदारी से DMI का विजन सृजित हुआ। उन सभी का हार्दिक धन्यवाद। I also welcome the others gracing this occasion, the members of the Board of Governors and DMI Society, the representatives of several organizations DMI is closely engaged with, and I am thankful to the parents and guardians of the graduates, PDM participants, faculty and staff of DMI, all invitees and guests, media representatives, and everyone here for their presence and support. मैं सभी को DMI के द्वितीय दीक्षांत समारोह में स्वागत करता हूँ। A convocation is the culmination of rigorous activities aimed at transforming young men and women at individual and professional levels. Our graduates, 24 of them, have worked very hard. They will now take up the challenging but immeasurably fulfilling task of enabling the underprivileged to transform their own lives. These ambassadors of DMI will go through their thought and deed, hopefully impact public policies in the future. Chief guest of this afternoon, Honorable Chief Minister of Bihar and President of the Development Management Institute Society, Shri Nitish Kumar ji. Our guest of honor, Dr. Madhav Chauhan, Chairman, Board of Governors, DMI, Shri Anup Mukherjee Sahab, esteemed members of the governing board, Professor Tushar Shah, Professor Trilochan Shastri, Balamurgan Sahab, Arvind Chaudhary Sahab, and the most venerable civil servant of this state, the Chief Secretary to the Government of Bihar, Shri Anjani Kumar Singh Sahab, members of academia, Bihar's intelligentsia, development professionals, practitioners, members of media, my faculty colleagues, and my young graduating friends, graduates of the day, ladies and gentlemen. There can't be a more delightful moment for the head of any institution than to be able to present the progress report of his or her institution. And that moment becomes truly momentous when it has to be presented in the presence of no other than the founding visionary of the institution, as is the case on this particular occasion, ladies and gentlemen. When I came here in August 2016, I was told that this institution has a seminal significance because no less than the Honorable Chief Minister of the state has put in all his strategic thinking in order to carve out a unique, high-performing knowledge institution that DMI was envisioned to be, seeks to be, and is on the way to becoming one. And thank you once again for all the support all the stakeholders have been extending to us in this journey. Thank you very much. I request Shri Arvind Chaudhary, member of the Board of Governors and Secretary Rural Development, to share his reflections with us. डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, कॉम्पिटेंट डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स। गरीबों के कार्यक्रम में यह बहुत आवश्यक है कि बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स लगाए जाएं। पुअर शुड नॉट बी सर्व्ड पुअरली, द बेस्ट ऑफ द माइंड्स शुड बी अवेलेबल एट देयर सर्विस। इस मोटिव के साथ हम लोगों ने 2013 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रस्तुतिकरण के दौरान यह सुझाव दिया कि इस तरीके की एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना यहाँ की जानी चाहिए, और सर ने तुरंत कहा कि हाँ, इसकी आवश्यकता है। और 13 फरवरी 2014 को कैबिनेट के अनुमोदन के बाद इसकी अधिसूचना निर्गत हुई
DMI की जर्नी अभी शुरू हुई है और इसे बहुत आगे जाना है। बिहार एवं सारे उत्तर पूर्वी राज्यों में इस तरीके के विकास पेशेवरों की, डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आज जो छात्र यहाँ से पास आउट हो रहे हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आपने यह सीख लिया कि सीखना कैसे है, तो फिर सीखना जिंदगी भर है। लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग। कुछ मुझे लगता है आप लोगों के साथ भी चर्चा DMI में हुई ही होगी। मैं 2 किताबों का भी जिक्र आपसे करना चाहूँगा। 1 मिनट मैनेजर आप लोगों ने पढ़ा होगा, उस पर चर्चा भी की होगी, और द गोल, इस पर भी चर्चा की होगी। ये दोनों किताबें आपको ज़िंदगी में आगे आपकी जितनी समस्याएं आती हैं उनको सॉल्व करने में, उनको हल करने में बहुत मदद करेंगी। इसके अलावा भी नई नई किताबें आती रहती हैं, आप उनको ज़रूर देखें। 2-4 बातें और आगे ध्यान में रखें। अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ख्याल रखें। आप कुछ भी करें लेकिन थोड़ा समय अपने इस शरीर पर भी दें ताकि आप फिजिकली फिट रहें। फिजिकली फिट रहेंगे तभी मेंटली अलर्ट रहेंगे और आप जहां भी रहेंगे बेहतर काम कर पाएंगे। Honorable Chief Guest, Honorable Chief Minister of Bihar, Dr. Madhav Charan, guest of honor on this occasion, other dignitaries on the dais, members of the Board of Governors, and other dignitaries of the dais. किसी ने कहा कि देश में लिटरेसी नहीं है। किसी ने, मतलब बड़े बुजुर्ग थे, अनिल बोरडिया साहब, और तब अंजनी बाबू शायद MHRD में थे, लिटरेसी मिशन में भी कुछ काम किया था आपने। तब किसी ने कह दिया कि देश को पूरा लिटरेट होना चाहिए और उसमें लगना ज़रूरी है जवान लोगों के लिए, तो हम लग गए उसमें। उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने लिटरेसी मिशन और सारे मिशंस लॉन्च किए थे। हम भी उसमें उतर गए बम्बई की झोपड़ी झुग्गी में, और देखते देखते काम आगे बढ़ता गया। तो आपको बधाई तो ज़रूर दे रहे हैं कि आपने कुछ सीख लिया है, लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। ये सेक्टर ऐसा है, ये सेक्टर नहीं, जो भी आप काम करना चाहेंगे उसमें आजकल ज़्यादा ये हो रहा है कि जितना आप लर्निंग करेंगे वो तो करता ही रहना पड़ेगा, जैसे कि चौधरी साहब ने बताया कि लर्निंग इज़ लाइफ लॉन्ग। लेकिन आजकल तो ये हो रहा है कि अनलर्निंग भी लाइफ लॉन्ग होना चाहिए, और रोज़ाना आके अनलर्निंग करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ज़माना बहुत तेज़ बदलता है। कल की बात सही थी तो आज शायद सही नहीं हो, हर बात पे नहीं, लेकिन बड़े बड़े पैमाने पे ये हो रहा है कि जिसको हम कल मान के चलते थे उसको आज पूरी तरह से मान के हम लोग नहीं चलते हैं या नहीं चल सकते हैं। सोचना पड़ता है कि क्या ऐसे ही मुझे करना होगा, क्या ऐसे ही सब करना होगा। तो ये अनलर्निंग का मामला जो है वो ज़रा मुश्किल होता है। ने आज के मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार एवं प्रेसिडेंट DMI सोसाइटी से अनुरोध करता हूँ कि आज के ग्रेजुएट्स को अपना आशीर्वचन दे और संबोधित करें। जो प्रशिक्षण लेना था, जो कुछ भी यहाँ जानना था, समझना था, उसमें कामयाबी हासिल की है। मैं इसके लिए तमाम छात्र छात्राओं को सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ। और ये डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये नाम भी पहली बार किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का पड़ा है, डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट था,
लेकिन जब इसकी बात यहाँ चर्चा हुई तो मुझे ये बात और ये विचार बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों को एक डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना यहाँ करनी चाहिए। और डेवलपमेंट क्या है? मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से डेवलपमेंट के बारे में एक व्यू है, लेकिन मेरे मन में डेवलपमेंट के बारे में क्या है, आम लोगों के मन में डेवलपमेंट के बारे में क्या अवधारणा है? मेरे लिए विकास का मतलब होता है न्याय के साथ विकास, और न्याय के साथ विकास यानी ग्रोथ विथ जस्टिस, डेवलपमेंट विथ जस्टिस। उसका मतलब क्या होता है? हम समाज के सभी हिस्से का, सभी समुदाय का, सभी व्यक्ति का विकास करें। और जैसे ये बिहार प्रांत, तो इसके हर इलाके का विकास हो, शहर हो या गांव, सबका विकास होना चाहिए। कोई उत्तर में है, कोई दक्षिण में है, कोई पूरब में है, कोई पश्चिम में है, कहीं भी है। अगर किसी जिले को हम यूनिट मान लें तो उस जिले के अंदर जितने प्रखंड हैं, प्रखंड में हम देख लें जो हमारे जितने पंचायत हैं, गांव हैं, सबका विकास होना चाहिए। और लोगों का मतलब है चाहे वो कोई व्यक्ति हो, किसी भी समुदाय का, सबका विकास होना चाहिए। और जिसके लिए विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए आपको और पहल करनी होगी तो वह करना चाहिए। तो इसको हमने प्रारंभ से ही कहा, न्याय के साथ विकास। हम सिर्फ विकास शब्द का प्रयोग नहीं करते, और जो भी शुरुआती दौर से ही शुरू हुआ, डेवलपमेंट का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सड़क भी चाहिए, पुल पुलिया भी चाहिए, बिजली भी चाहिए। आप कहीं पढ़ते हैं या कोई काम करते हैं, उसका बिल्डिंग स्ट्रक्चर भी ठीक होना चाहिए। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण इस प्रकार से होना चाहिए कि हर प्रकार की परिस्थितियों को वो झेल सके, उसका मुकाबला कर सके। अब जैसे बिहार जैसा राज्य, हम तो बहुत ही आपदा प्रवण इलाके में आते हैं। अनेक प्रकार की आपदाओं के शिकार हो सकते हैं। बाढ़, सूखे के बारे में तो सब लोग जानते हैं। अब ये मौसम चल रहा है, अभी आग लगने की घटना होगी, भूकंप आ सकता है, साइस्मिक जोन के हिसाब से 4 और 5 में हम हैं, तो अनेक प्रकार की आपदाएं हैं। तो फिर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण इस प्रकार से करना चाहिए कि अगर कोई आपदा आए तो उसको भी झेल सके। अब आप देख रहे हैं किस तरह से पूरे दुनिया में, एक तो आपदा का एक कारण यह भी है कि पर्यावरण पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जो शुरुआती दौर में विकास की बात आई, लोग तो बापू को भूल गए। देश आजाद हुआ, लेकिन आजाद होने के बाद लोग बापू की बातों को भूल गए, ध्यान देना नहीं शुरू किया। और नतीजा हुआ कि जो एक मानसिकता बनी डेवलपमेंट की, उसके बारे में, विकास के बारे में लोगों की जो एक अवधारणा बनी, वो ऐसी अवधारणा बनी कि उन्होंने चिंता ही छोड़ दी, पर्यावरण की चिंता छोड़ दी, इन्वायरमेंट की चिंता छोड़ दी, कुदरत का कोई ख्याल नहीं रखा, नेचर का कोई ख्याल नहीं रखा। और आज आप जब देखते हैं, ये डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, इसलिए हम इन बातों को शेयर कर रहे हैं। आप जरा हाल देख लीजिए नदियों का। हम लोग जब बच्चे थे, युवा थे, तो नदियों में जो प्रवाह देखते थे, मेरा जन्म तो गंगा नदी के किनारे हुआ था, तो बचपन में सप्ताह में कम से कम एक दिन, रविवार के दिन जो छुट्टी का दिन होता था, उस दिन तो जरूर गंगा नदी में नहाने जाते थे। तो जो पानी का फ्लो था, पानी किस तरह का शुद्ध था। और नहाने के बाद हम लोग घर में छोटे बाल्टी में पानी लेकर जाते थे, और उस दिन बड़ी प्रसन्नता रहती थी कि चलो आज हम पीने का पानी खुद लाएं। तो जो उस समय की स्थिति थी, और आज देख लीजिए, उस समय तो उस पानी को पीते थे, आज तो नहाने लायक भी नहीं बचा।
तो जो डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है, अगर शुरू से ठीक होता तो ये नौबत नहीं आती। तो जो विकास का कंसेप्ट है वो इस प्रकार से होना चाहिए जिसमें हमें पर्यावरण का ख्याल रखना है। तो हमने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण इस तरह से होना चाहिए कि एक तो आपदा की स्थिति को वो झेल सके, और दूसरी बात है खुद पर्यावरण को नष्ट न करे। तो डेवलपमेंट का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लेकिन इसके साथ साथ डेवलपमेंट का मतलब क्या है? अभी बहुत अच्छी बात कही गई, ये हेल्थ के बारे में कॉन्शसनेस, स्वास्थ्य के बारे में। बापू जब चंपारण गए और जो उनके नेतृत्व में सत्याग्रह हुआ, किसानों की बात वो सुन रहे थे और उनके साथ बड़े बड़े वकील जो थे वो सब किसानों की बात दर्ज कर रहे थे, और उससे एक ऐसा माहौल बना। अभी तुम्हारे अनूप मुखर्जी जी कोट कर रहे थे, गांधी जी के आते ही अंग्रेजों की इतनी हालत खराब हो गई कि वो मोतिहारी पहुंचे, अगले दिन एक गांव जा रहे थे, रास्ते में ही प्रशासन की तरफ से उनको भेज दिया गया कि आप बाहर जाइए। तो बाहर गए नहीं, लौट कर आए मोतिहारी, और जब उनकी कोर्ट में पेशी हुई तो उन्होंने जो कहा उसको बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने उद्धृत किया। लेकिन जो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी गए, पंडित राजकुमार शुक्ला जी के आमंत्रण पर बड़ा प्रयास किया शुक्ला जी ने, तब गांधी जी तैयार हुए, आए, और जो कुछ भी हुआ, किसानों के साथ जो जुल्म हो रहा था वो तो बंद हुआ, अंग्रेजों को घुटना टेकना पड़ा, चंपारण एग्रेरियन लॉ बनाना पड़ा, ये अपनी जगह पर है। लेकिन गांधी जी जब वहां गए तो उन्होंने जो वहां की स्थिति देखी, किस तरह से लोगों का कोई अवेयरनेस नहीं है क्लीनलीनेस के प्रति, स्वच्छता के प्रति, उस चीज को उन्होंने देखा। किसी का कोई अवेयरनेस नहीं है हेल्थ के बारे में, और शिक्षा के बारे में तो कुछ है ही नहीं। तो गांधी जी ने उसी समय लोगों को बताया, स्वच्छता के बारे में जानकारी दी, बताया, लोग साफ करने लगे। कुआं ही होता था, और कुआं के बगल में जो माहौल था, जिस तरह से कचरा भरा रहता था, गांधी जी ने इन सारी बातों को देखा और लोगों को बताया। फिर पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो किस तरह से वहां उन्होंने पढ़ाई प्रारंभ कराई? गुजरात, महाराष्ट्र, बाहर से लोगों को बुलाकर। मां कस्तूरबा गांधी ने भी काम किया, देखा वितिहरवा आश्रम को। तो इस प्रकार से हेल्थ के प्रति अवेयरनेस, अभी जो आपको बताया जा रहा था कि भाई अपने स्वास्थ्य के बारे में, लगता है अपने स्वास्थ्य के बारे में भी सोचिए, ये बड़ी अच्छी बात है। ये तो गांधी जी जब चंपारण आए उसी समय लोगों को बताया कि इसके बारे में जानो, समझो, शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया। तो ये जो विकास का मतलब है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावे यह भी है कि शिक्षा हो, और शिक्षा कैसी हो? भाई एक तो अंग्रेजों का अनुकरण करते हम लोग रह गए, उनके पढ़ाई का, और गांधी जी ने जो बुनियादी विद्यालय बनाया वो बाद में बंद हो गया। तो जो अलग पद्धति थी शिक्षा की, उसको भी हम लोग भूलते चले गए। और आजकल आप देखते हैं लोग मॉडल की बात करेंगे, ये मॉडल बनना चाहिए। मॉडल बनने से कुछ नहीं होगा, सबका एक समान विकास होना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं ना कि मॉडल विलेज बनाएंगे। अरे मॉडल विलेज क्या बनाइएगा, हर विलेज को मॉडल बनाइए। एक विलेज को मॉडल विलेज बनाने का कोई मतलब नहीं। जो आपका मॉडल है, जो आपका कंसेप्ट है, उसके हिसाब से हर गांव को बनाइए। कंसेप्ट ये होना चाहिए। तो एजुकेशन के बारे में भी, शिक्षा के बारे में भी, बुनियादी चीजों के बारे में समझ होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। सिर्फ अक्षर ज्ञान से और आज के युग में कंप्यूटर ज्ञान से ही सब कुछ नहीं हो जाएगी। शिक्षा के प्रति अवेयरनेस, स्वास्थ्य की चिंता, स्वस्थ रहना चाहिए आदमी, क्यों बीमार पड़ता है। अब गांधी जी उस जमाने में लोगों को स्वच्छता के बारे में बताते थे, खुले में शौच कितना अवेयर करते थे।
खुरपी से ज़मीन को थोड़ा सा हटा करके, मिट्टी को हटा करके तब वो शौच और उसके बाद फिर मिट्टी भरती है ताकि किसी को कोई परेशानी नहीं हो। और आज हम लोग हमेशा कहते हैं कि अगर पीने का स्वच्छ पानी मिल जाए और खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए तो आज जितनी बीमारियां होती हैं 90% बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। तो भाई जो हेल्थ का मतलब क्या है? हेल्थ का मतलब आप बीमार पड़ गए दवा खा लिया, ये तो मतलब है नहीं। हेल्थ का मतलब है अवेयरनेस, हम किस तरह से जीवन जिए। और हमको तो लगता है कि इंस्टीट्यूशन ऐसा बने, इंस्टीट्यूशन का जो कैंपस वो ऐसा हो कि आने वाले हर के मन में ये भाव पैदा हो जाए कि भाई हम भी यहाँ कुछ सीखें। तो इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ और जितने यहाँ आप सब आज जो डिप्लोमा हासिल किए, आपके सभी परिवार के लोगों को, अभिभावकों को भी मैं अपनी तरफ से पूरी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको और डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर से लेकर, चेयरमैन से लेकर, डायरेक्टर से लेकर के हमारे जितने फैकल्टी मेंबर हैं, दूसरे तमाम लोग हैं, मैं उन सबको बधाई देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि पटना बिहार का डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट देश के लिए एक आइडियल इंस्टीट्यूट बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। Convocation is very important event in the lives of student, and it's so more important when it comes to the DMI. The Development Management Institute offers a unique way of learning. So it's part of, it ranges from the classroom to experience learning. So all integral component of the learning are involved. We have been conscientized in such a way that wherever we see certain problems, whether it's urban or rural, related to development, where we see poverty, where we see marginalized suffering, where we see people who actually need our help in the development perspective, we are sensitized in such a manner that we would feel the attachment, and we could do to an extent we could help them. It has given me something which I want to return to the institute as well. So DMI के लिए कुछ करना है और लोगों के लिए भी बहुत कुछ करना है. I am Sakshi Saurabh. I graduated DMI in the year 2016 and currently I am working in Delhi Commission for Women in Delhi, and DMI has been instrumental in transforming my life by making me capable to work for the people, to work for the marginalized section of the society. I am Piyush and I am third batch PDM participant from DMI Patna. So tomorrow we are going to have our convocation. So this 2-year journey is coming to an end. This 2-year journey has been full of colors and full of challenges, but I am happy that together as a batch we have been able to complete this program. Good evening everyone, my name is Priyanka. I am from Ranchi, Jharkhand. Being here in DMI, it was a wonderful experience, and we got to know more about what is actually development about grassroots. I am currently placed in Aga Khan Rural Support Program for India in Bihar, that is in Hajipur, and I will be looking after the poultry project in Hajipur itself, and I am a senior development officer there. Coming to DMI was one of the best things I have done in my life. I believe that, because it has given me a lot of opportunities to see how the rural and urban sectors work and how the development is, what is the development. And
with these 2 years of rigorous course, I've broadened my knowledge, I've broadened my way of thinking, I have changed a lot. I think that it has transformed me. So I believe that yes, in the further coming years, this institute might get more of the students, and it will evolve as one of the best institute in Bihar. As part of my experiential learning, I went to Mulkanur Cooperative Rural Bank. It is one of the Asia's biggest cooperative. So I have seen the work, how the development sector is working and how it is helping the communities to get uplift and come into the mainstream of the society. So during that time I feel that not only money which is going to matter for me in coming years, it's some personal satisfaction if you are going to help some poor or marginalized people. The level of satisfaction which you will get personally is somewhat different, which nobody or no other development colleges will going to offer you.